Hello bachcho, how are you? The future of India. Welcome to all of you in my class, that is definite integration, and this is our third class where we are learning properties of definite integration. Alright, till now we have covered almost all the topics starting from functions, limits, continuity, differentiability, inverse trigonometry, application of derivative, indefinite integration, and now we are doing definite integration. ठीक है बच्चों? Come, let us learn it and see how easy it is. So we started with introduction bachcho, then we did properties 1, properties 2 is what we are going to do today with a quick recap of what we did in property 1, King's rule, remember? Alright, after that we will learn Newton-Leibniz's summation of integration, and on 28th will be my most important class where we will learn shortcuts as well as revise entire definite integration and do problems at JEE Mains and Advanced level. Okay, chalo. Brief introduction about me bachcho. I am Pulkit. I did my BTech from IIT Roorkee in 2005. After that I started Laksh Institute, which many of you know about because from Laksh we have produced many top rankers including All India Rank 1 in IIT, AIMS, KVPY, and after that bachcho I along with Vamsi sir, Anand sir, with whom I started Laksh Institute, we started Vedantu to use technology to reach out to all the awesome students like you out there. And usi ke wajah se I am also taking classes on YouTube so that everyone in the country, be it from any part of the country, आप financial resources कैसे भी हो हर कोई पढ़ सके free में, right? And please help me in spreading that message to all your friends. Do share with your friends on WhatsApp or Facebook or Instagram, wherever you are, so that others can also benefit. And if you have not subscribed, do subscribe by pressing on the bell icon so that you keep getting the notifications. In parallel, KVPY classes are also happening on Vedantu JEE channel, so आप वो attend ज़रूर से करना. If nothing else, your JEE advanced level preparation will start happening from there because the problems of KVPY are more JEE mains plus or JEE advanced level problems, है ना? चलो. So bachcho, these are the kind of problems that we are going to learn to solve today. Problems like these, alright? This is JEE 2006, and problems like these, which look a bit complicated to look at, but we'll realize these are very easy to solve. Okay, if you are watching it as a replay and if you want to give the answer, you can solve it and put the answer in the comments. I can see who all have solved it. और अगर आप लाइव देख रहे हो तो आ जाओ, कम साथ में सॉल्व करेंगे. इसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, ठीक है? चलो, दिस वी डिस्कस्ड अबाउट द वेटेजेस. If you have not joined the Telegram group, please join. The link is there in the description. This is where all the PDFs of the classes are getting shared, as well as students do doubt discussion, है ना? And all PDFs and assignments of all the topics till indefinite integration are there on Vedantu's app. You can download it from the Play Store. Okay, and the PDF as well of the classes are available here. So without wasting time, definite integration properties. Last time what we did, a quick recap. We learned in the last class the King's rule. Why do we call it King's rule? Because bhai ye king hai. Because this is like 99% of the problems of definite integration will be solved using this or some application of this, and it is super simple. Revise kare with a problem. Chalo, let us revise it with a problem. So guys, let's do this. Integration pi by 6 से pi by 3 dx upon 1 plus 10x very quickly. Let's try to do it using the property. क्या करेंगे बच्चों? What do you always think about? आप सोचते हो यार यहाँ पे प्रॉपर्टी से कुछ हेल्प होगा क्या? कैसे सोचते हो आप? You say this is I. You start by taking the original integration as I, right? उसके बाद बच्चों आप क्या करते हो? You try to replace x by a plus b minus x and write I again. आप क्या करते हो? इंटीग्रेशन pi by 6 से pi by 3 dx upon 1 plus replace x by, if this is f of x, you write f of a plus b minus x. What is बच्चों a plus b? Pi by 6 plus pi by 3, a plus b, that is pi by 6 plus pi by 3 is pi by 2. So you replace x by a plus b minus x
एंड द इंटीग्रेशन डज नॉट चेंज, वो वापस से आई ही रहता है, राइट। सो ये कितना हो जाएगा बच्चों, a प्लस बी दैट इज पाई बाई 2 माइनस एक्स। तो बच्चों कितना बन गया, इंटीग्रेशन पाई बाई 6 से पाई बाई 3 dx अपॉन पाई बाई 2 माइनस एक्स का 10 बच्चों कितना हो जाएगा, कॉट, राइट। बट यू कैन फर्दर सिंप्लीफाई इट बाय सेइंग, आई थिंक मैक्सिमम बच्चों का आंसर आ गया, कमेंट्स में आप लिख रहे होंगे, राइट। तो कितना हो जाएगा ये, आई कैन एक्चुअली राइट कॉट एज 1/10, राइट, और एलसीएम लूंगा तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बिकम 10x अपॉन 1 प्लस 10x। नाउ व्हाट यू डू बच्चों, सो वंस यू हैव ओरिजिनल इंटीग्रेशन and once you have the integration after using the property, how do I do this, because I use the property that integration fx dx is equal to integration of f of a plus b minus x dx under the same limits a to b. This was the property which we used. जब आपके पास I और I आ गया, what will you do बच्चों, you will add the two, you will add the two. What will you do, you will write 2i is equal to, and बहुत सिंपल है, when you will add this and this, क्या हो जाएगा बच्चों, डिनोमिनेटर इज द सेम, ऊपर न्यूमरेटर कितना हो जाएगा 1 प्लस 10x, नीचे भी कितना है 1 प्लस 10x, बचा कितना बच्चों, इंटीग्रेशन सिंपली 1 dx पाई बाई 6 से पाई बाई 3, बस सॉल्व कर लो, आंसर कितना आ जाएगा, पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 6 दैट इज पाई बाई 6 अपॉन 2 पाई बाई 12 इज द आंसर। कूल, चलो समझ में आ गया, इट्स वेरी सिंपल, बट यू विल रियलाइज इतना करने की जरूरत ही नहीं थी, अभी देखते हैं। सो दिस वाज द प्रॉपर्टी, तो आपने क्या किया, आपने लिखा आई, दिस इज योर 1, आपने वापस से प्रॉपर्टी अप्लाई किया, सो दिस इज ओरिजिनल इंटीग्रेशन, दिस इज द इंटीग्रेशन आफ्टर अप्लाइंग द प्रॉपर्टी, किंग्स रूल, राइट, विच अपॉन टेकिंग एलसीएम बिकम्स, क्या हो गया 1/10x, एलसीएम लेंगे तो 10x dx 1 प्लस 10x, देन फर्स्ट प्लस सेकेंड, इन दोनों का एडिशन कर देंगे, विल डू द एडिशन ऑफ दीज टू, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, क्या आ जाएगा आपके पास, 2i इज इक्वल टू सिंपली दिस, कैंसिल हो गया, बचा सिंपली 1 dx विच इज x अंडर द लिमिट्स पाई बाई 6 से पाई बाई 3, इट इज पाई बाई 6, बट दिस इज 2i, सो i बच्चों कितना हो जाएगा, पाई बाई 12। बट ये सब करने की जरूरत थी क्या, वर यू रियली रिक्वायर्ड टू डू ऑल दिस, नहीं ना, अभी बताता हूं कैसे, याद है लास्ट टाइम मैंने आपको एक फटाफट शॉर्टकट बताया था, रिवाइज करें, आओ देखते हैं। लुक एट दिस प्रॉब्लम बच्चों, इफ यू रियलाइज दिस प्रॉब्लम एंड द प्रीवियस प्रॉब्लम इज सेम, ये और प्रीवियस प्रॉब्लम बिल्कुल सेम थी, कैसे, व्हाट वाज द प्रीवियस प्रॉब्लम, इंटीग्रेशन dx अपॉन 1 प्लस 10x पाई बाई 6 से पाई बाई 3, आई कुड हैव ऑल्सो रिटन दिस एज बाय राइटिंग tan as sin अपॉन cos, मैं इसको लिख सकता था कितना, cos x अपॉन sin x प्लस cos x। अगर आप इन दोनों में ढंग से रियलाइज करें, डू यू रियलाइज द फॉर्मेट लुक्स लाइक, इफ दिस इज f of x देन दिस इज ऑल्सो f of x, अपना शॉर्टकट याद आया, व्हाट इज द एडिशन, व्हाट इज a प्लस b, this is a and this is b, what is a plus b here, this is a, this is b, in both these cases what is a plus b, a plus b यहां पे कितना रहा है, पाई बाय 2, और यहां पे कितना रहा है, पाई बाय 5 प्लस 3 पाई बाय 10, that is 2 पाई बाय 10 प्लस 3 पाई बाय 10, that is 5 पाई बाय 10, that is पाई बाय 2, in both these cases a plus b is पाई बाय 2, so what is this बच्चों, ढंग से देखो, does it not look like f of a plus b minus x, that is f of pi by 2 minus x, same there as well, अगर ये f of x है तो ये भी f of x है, अगर मैं x को रिप्लेस कर दूं a plus b minus x से, that is x को रिप्लेस कर दूं यहां पे pi by 2 minus x से, तो बच्चों कितना आ जाएगा, cos x, तो ये f of x है, ये f of x है, तो बच्चों ये क्या है, f of a plus b minus x, मैंने आपको बताया था जब भी फॉर्मेट होती है इंटीग्रेशन a टू b एफ एक्स अपॉन एफ एक्स प्लस एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स, बिल्कुल सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज योर आंसर डायरेक्टली इज हाफ टाइम्स b माइनस a। कितना आंसर हो जाएगा बच्चों इसका, हाफ टाइम्स
b minus a, that is 3 pi by 10 minus pi by 5, करो तो कैलकुलेट कितना आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3 पाई बाई 10, ये हो जाएगा 2 पाई बाई 10, बचा पाई बाई 10 बाई 2 पाई बाई 20। और सिमिलरली ये भी हो जाता, दिस इज एग्जैक्टली द सेम थिंग, ये भी बिल्कुल सेम है कि नहीं है, ठीक है। ये भी कितना है, ये एफ ऑफ एक्स है, तो ये भी एफ ऑफ एक्स है, सिंस ए प्लस बी इज पाई बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स। तो इसका आंसर डायरेक्टली कितना आ जाएगा, हाफ टाइम्स b माइनस ए, दैट इज हाफ टाइम्स पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 6, जो आ जाएगा बच्चों पाई बाई 12। खत्म, क्लियर। तो ऐसी प्रॉब्लम्स में टाइम वेस्ट नहीं करना है, ये डायरेक्ट है, ठीक है, कूल। ये था, दिस इज व्हाट आई टोल्ड यू लास्ट टाइम, whenever you get fx upon f of x plus f of a plus b minus x, answer is directly half times b minus a, and it is super common। IIT में हर सेकेंड ईयर में एक प्रॉब्लम डायरेक्टली मिल जाएगी इसके ऊपर आपको, एंड दिस इज अ लड्डू, सुपर लड्डू, खा जाओ 2 सेकंड में खा जाओ, ठीक है, सोचना नहीं उसके आगे। चलो आगे बढ़ते, ठीक है, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, दिस इज द प्रॉपर वे ऑफ डूइंग इट। कौन करेगा इतनी सारी मेहनत, ठीक है, देख लेना आप, PDF में मिल जाएगा, बट सेंसलेस, राइट, डायरेक्ट आंसर था। हाँ, प्रॉपर्टी 5th is now the new property that we are going to learn today, and this is again a very important property. This property is on even and odd functions and super duper important for JEE, not just in this chapter but in area under the graph as well। करें, देखो बच्चों क्या बोलता है ये, जब भी आपके पास इंटीग्रेशन माइनस ए से ए का आएगा ना, तो हमेशा चेक करना कि ये इवन ऑड का फंक्शन तो नहीं है। कैसे, अगर बाय चांस एफ ऑफ एक्स ऑड हो गया तो आंसर हो जाएगा 0। इफ एफ ऑफ एक्स इज इवन देन आंसर हो जाएगा 2 times 0 to f of x dx, and it is pretty obvious। let's learn it graphically more than algebraically। it is super simple to visualize it graphically। कैसे बताता हूं, देखो बच्चों, 2 ग्राफ लेते हैं, एक ग्राफ लेते हैं अपन ऑड फंक्शन का और एक ग्राफ लेते हैं अपन इवन फंक्शन का, ठीक है। तो ऑड फंक्शन का ग्राफ बच्चों कैसा होगा, मान लो ये एक फंक्शन है, दिस इज ऑड। व्हाट इज ऑड फंक्शन बच्चों, ऑड फंक्शन इज वेयर एफ ऑफ माइनस एक्स is equal to minus fx। this is odd। odd function का ग्राफ कैसा होता है बच्चों, the graph of odd function is always symmetrical in the opposite quadrant, ठीक है। तो अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में ऐसा बनेगा, राइट। एंड इफ इट इज एन इवन फंक्शन तो ग्राफ कैसा होगा, इवन फंक्शन का ग्राफ बनाए, मान लो ऐसा बना दो, ऐसा बना दो, ये ले लो, जैसा ग्राफ है राइट हैंड साइड में वैसा ही ग्राफ है लेफ्ट हैंड साइड में। द ग्राफ इज सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस, राइट। किसका ग्राफ है ये, दिस इज इवन ग्राफ, दिस इज इवन फंक्शन वेयर f ऑफ माइनस एक्स इज f ऑफ x। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इवन फंक्शन, हम पढ़ चुके, वी हैव रेड दिस इन द चैप्टर ऑफ इवन एंड ऑड फंक्शंस में, राइट। अब अगर मैं इंटीग्रेशन करूं ना बच्चों, इंटीग्रेशन कौन सा करना है अपने को, नाउ लेट्स फोकस ऑन द इंटीग्रेशन। Since we have to do integration from minus a to a, जब आप minus a से a पे जाओगे, right? So if the area here is a, then area here is also a, right? But when you do the integration बच्चों, integration क्या आता है, here to here integration बच्चों कितना आ जाएगा, negative। So integration minus a से 0 बच्चों कितना होगा, that will be minus of a। मैंने बताया था ना आपको, इफ द ग्राफ इज बिलो एक्स एक्सिस इंटीग्रेशन इज नेगेटिव ऑफ द एरिया, एंड व्हेन यू डू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to a तो बच्चों कितना आएगा, इट विल बी a। व्हेन यू ऐड द 2, दिस प्लस दिस बच्चों कितना हो जाएगा, 0। सो पॉजिटिव एंड द नेगेटिव विल कैंसिल ईच अदर आउट। तो इसका इंटीग्रेशन आएगा से -2, इसका इंटीग्रेशन आएगा 2, -2 + 2 0। सो हेंस minus a to a fx dx
will be 0 if f of x is odd, because जितना नेगेटिव है उतना ही पॉजिटिव आ जाएगा, and it will cancel out to become 0 always. But if you are integrating between minus a to a in an even function, तो basically point क्या है, जो आंसर इधर आएगा वही आंसर इधर भी आएगा. So why do we do so much मेहनत? Let's not do so much मेहनत, right? So integral minus a से a fx dx. बच्चों माइनस a से 0 पे आऊंगा, आंसर विल बी a. 0 to a जाऊंगा, आंसर इज अगेन a. So why should I go from minus a to a? Why don't I go only between 0 to a and multiply by 2? Logical. So basically मैं क्या करता हूं, 2 times rather than going from minus a to a, let me only go from 0 to a. My answer will be a. Net answer minus a to a बच्चों कितना होगा, 2a. नेट आंसर क्या है, माइनस ये कितना है, दिस इज एक्चुअली 2a, है ना. बोथ आर सेम. ये भी अगर पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव आएगा, राइट. सो सिंपली गो फ्रॉम 0 to a. दैट्स इट, वेरी सिंपल. सो रेदर देन गोइंग फ्रॉम हियर टू हियर, केवल इतना कैलकुलेट कर लो, 2 से मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा, विच इज दिस. इफ f of x is even. समझ में आया? सो इट इज प्रीटी ऑब्वियस, देयर इज नथिंग टू प्रूव. इट्स इफ यू कैन विजुअलाइज ग्राफ, इट इज नॉट अ प्रॉपर्टी, इट इज जस्ट एन ऑब्वियस थिंग. ये तो होता ही है, ऑब्वियसली होगा. मेक सेंस? समझ में आ रहा है बच्चों सबको? आर यू गेटिंग इट? ओके कूल. आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते. लेट्स सी हाउ इट इज गेटिंग अप्लाइड. नाउ लेट्स लुक एट दिस JEE 2006 प्रॉब्लम. आ जाओ इसके ऊपर, कम. दिस इज अ JEE 2006 प्रॉब्लम. रीड इट. बच्चों एक चीज याद रखना, जब भी किसी क्वेश्चन में इंटीग्रेशन माइनस ए से ए के बीच में है, वेन एवर इन एनी इंटीग्रेशन, इफ द इंटीग्रेशन इज फ्रॉम माइनस ए टू ए, गारंटीड यू हैव टू थिंक अबाउट इवन एंड ऑड. पक्का वो हिंट है, ठीक है. बट यहां पे प्रॉब्लम क्या है, इट इज नॉट फ्रॉम माइनस ए टू ए. चलो, तो मुझे अभी तक नहीं पता. फ्रैंकली व्हेन यू सी द प्रॉब्लम फर्स्ट टाइम, यू रियली डोंट नो इफ इट इज एन इवन ऑड का प्रॉब्लम. बट व्हाट यू थिंक इज, यार ये x प्लस पाई क्यों इतना परेशान कर रहा है, यहां भी x प्लस पाई, यहां पे x प्लस 3 पाई है. इट इज अननेसेसरी ना. व्हाई इज दिस x प्लस पाई देयर? कैन आई रिमूव दिस x प्लस पाई एंड मेक इट लुक अ बिट सिंपलर? यस आई कैन. ठीक है, मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा यार मुझे x प्लस पाई बेकार लग रहा है, आई डोंट लाइक दिस x प्लस पाई, अननेसेसरी. सो मैं क्या करता हूं, टू सिंप्लीफाई द प्रॉब्लम, लेट मी पुट x प्लस पाई इज इक्वल टू t. करो जरा, see what will happen, something interesting will happen. ये तो क्लियर हो गया, dx is dt, no problem, है ना. dx तो dt हो गया, dx is equal to dt. तो ये प्रॉब्लम किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इंटीग्रेशन, राइट. ये तो हो जाएगा t क्यूब, ये हो जाएगा cos x प्लस पाई, तो कर दिया t, तो बचा कितना, x प्लस पाई तो हो गया t, तो ये बचा बच्चों कितना, t प्लस 2 पाई. व्हाट इज cos ऑफ t प्लस 2 पाई? व्हाट इज cos 2 पाई प्लस थीटा बच्चों कितना होता है? व्हाट इज cos 2 पाई प्लस एनीथिंग? सेम थिंग, राइट. cos 2 पाई प्लस थीटा इज cos थीटा, sin 2 पाई प्लस थीटा इज sin थीटा. सो cos 2 पाई प्लस t बच्चों कितना हो जाएगा, सिंपली cos t. एग्री? एनी डाउट? क्योंकि मैंने x प्लस पाई तो कितना कर दिया, x प्लस पाई तो t हो गया, तो बचा कितना, x प्लस पाई तो t हो गया, बचा कितना, 2 पाई, तो t प्लस 2 पाई विच इज नथिंग बट cos t. सो ये क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो गया, प्लस. ये तो इतना आ गया, राइट. नाउ लेट्स लुक एट द लिमिट्स. ये लिमिट कितनी थी, -3 पाई बाई 2. किसकी लिमिट थी बच्चों, -3 पाई बाई 2? इट वॉज द लिमिट ऑफ x. सो x1 was -3 पाई बाई 2 and x2 was, upper limit was -पाई बाई 2. तो लिमिट्स विल चेंज. तो यहां पे t1 हो जाएगा, लोअर लिमिट इज t1. सो व्हेन x इज -3 पाई बाई 2, देखो बच्चों ध्यान से, जब x है -3 पाई बाई 2 तो t बच्चों कितना होगा,
-3π/2 प्लस पाई, पाई -3π/2 कितना होता है, कितना होता है? -π/2, चेक कर लो जरा, चेक करो. एंड व्हेन इट इज -π/2, सो व्हेन x की वैल्यू इज -π/2 तो t कितना है, x इज -π/2, पाई -π/2 इज π/2. ये लो. नाउ द प्रॉब्लम बिकम्स इवन एंड ऑड. जैसे ही आपने ये किया सडनली आपकी लिमिट्स बच्चों क्या आ गई, -a to a. जैसे ही लिमिट्स आई -a to a, इमीडिएटली योर थॉट इज अरे बाबा ये तो इवन ऑड का क्वेश्चन है. नाउ सी व्हाट इज इवन, व्हाट इज ऑड. Now see what is even, what is odd. Can you break this question as integral -π/2 से π/2 t cube dt plus integral -π/2 से π/2 cos square t dt. You will realize ये तो हो गया 0. You will realize बच्चों ये तो हो गया 0. This is 0. क्यों? बिकॉज टी क्यूब इज ऑड. टी क्यूब तो बच्चों क्या होता है, ऑड होता है ना. एक्स क्यूब इज ऑड, टी क्यूब इज ऑड. सो ऑड का इंटीग्रेशन बिटवीन -a to a, ये तो गया 0. कॉस स्क्वायर टी बच्चों क्या है, इवन. दिस इज इवन. तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 टाइम्स 0 से π/2. rather than writing -a to a, I will write 2 times 0 to a cos square t dt. कर लोगे सॉल्व. cos स्क्वायर को बच्चों कन्वर्ट कर दो किसके अंदर, cos 2 थीटा, cos स्क्वायर थीटा, कन्वर्ट दैट इनटू cos 2 थीटा, 1 प्लस cos 2 थीटा, राइट. एंड देन सॉल्व. दिखाओ वापस से, समझ में आया बच्चों सबको. देखो व्हाट डिड वी डू, क्विक रिवीजन एंड मूविंग अहेड. हमने क्या किया स्टेप 1 में, सो आंसर आपका आ जाएगा π/2. अपन ने क्या किया, आंसर इज बाय द वे π/2, सी विच यू आर सेइंग, राइट. सो हमने स्टेप 1 में बच्चों क्या किया, x प्लस पाई को t पुट किया. यू आर आस्किंग मी वाई, अरे क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा. वाई डू आई अननेसेसरी वांटेड एन एक्सपेंडेड टर्म, आई वांट टू जस्ट समराइज, श्रिंक इट. t, इसको t किया, इसको t करते ही क्वेश्चन इसमें कन्वर्ट हो गया, राइट. बट ये चीज तो बच्चों क्या है, दिस इज ऑड एंड दिस इज इवन. स्क्वायर है ना, कॉस वैसे इवन होता है, कॉस का स्क्वायर तो ऑफकोर्स इवन होगा, राइट. सो इवन, ये दिस इज ऑड, दिस इज इवन. तो ये तो इसका इंटीग्रेशन 0 बच गया कितना, 2 टाइम्स 0 से π/2 cos square t dt. बट हाउ डू यू सॉल्व इट, यू राइट दिस एज 1 प्लस cos 2 थीटा बिटवीन 0 से π/2. आई एम लीविंग द इंटीग्रेशन टू यू, इट्स वेरी सिंपल, यू ऑल कैन डू इट. आंसर विल बी π/2. क्लियर, प्रीटी सिंपल, नथिंग स्पेशल हियर. दिस इज अ जेई प्रॉब्लम. आगे बढ़ते हैं. Now let's look at this problem. Do it. -π/4 से π/4 x cube sin 4x dx. Can you give me the answer verbally? -a to a, मतलब of course, if it is a -a to a, then of course you are talking about even and odd, right? So -π/4 से π/4 x cube sin 4x dx. अच्छा, बाय द वे बच्चों, आपको ये सब तो बता ही देता हूं मैं. लेट मी टेल यू दैट fx इज इक्वल टू साइन एक्स हमेशा क्या होता है बच्चों, दिस इज ऑड, याद रखना. एंड fx इज इक्वल टू cos x इज इवन. यू कैन सी फ्रॉम देयर ग्राफ ऑल्सो. साइन का ग्राफ कैसा होता है बच्चों, दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन एक्स. ये साइन एक्स का ग्राफ है ना, सिमेट्रिकल इन द अपोजिट क्वाड्रेंट. This is sin x, odd. And what is cos x graph? This is the graph of cos x. Symmetrical about y-axis. This is even. For your quick revision. आपको पता है, but just for your quick revision. Right? तो ये तो था sin x cos x, but इसको देखो, हाँ से ये your answer is right. Of course the answer will be 0 because this is तो बच्चों क्या हो गया, even. साइन एक्स ऑड था, बट जैसे आप इवन पावर से रेज कर दोगे, इफ यू रेज एनीथिंग विथ एन इवन पावर इट ऑब्वियसली बिकम्स इवन, राइट. बट बच्चों ये क्या हो जाएगा, दिस इज, ये तो ऑफकोर्स ऑड है. याद रखना बच्चों, ऑड इंटू इवन इज ऑलवेज ऑड.
ऑड इंटू इवन इज ऑलवेज ऑड, राइट। तो ये पूरा फंक्शन बच्चों क्या हो गया, ऑड हो गया। एंड माइनस ए टू ए ऑड फंक्शन, द आंसर इज बिग अंडा 0। यस, ठीक है। सो माइनस ए टू ए एन ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन 0। सो दिस क्वेश्चन इज सिंपली ऑफ इवन एंड ऑड फंक्शन। सो कई बच्चे मुझसे पूछते थे सर इवन एंड ऑड फंक्शन हम फंक्शंस में क्यों पढ़ते हैं, क्या उसके ऊपर क्वेश्चन आता है, आर देयर डायरेक्ट क्वेश्चंस इन इवन एंड ऑड? नो, एट टाइम्स नो, because even and odd functions applications are in many other chapters like here, right? So the questions in definite integration definitely require your understanding of even and odd functions. If you have any doubt bachcho, go back and revise my functions ki class where I devoted quite a decent time on discussing how to find if a function is even or odd. I think मैंने पूरा एक हाफ क्लास उसके ऊपर डिवोट किया था, रिवाइज करना जरूर से। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स डू दिस प्रॉब्लम बच्चों। ये तो हो गया, तो उसको छोड़ते हैं। दिस इज हाउ वी कैलकुलेट इफ इट इज इवन और ऑड। यू स्टार्ट बाय सेइंग एफ ऑफ एक्स कितना है, ये फंक्शंस में कराया था मैंने। यू स्टार्ट बाय सेइंग एफ ऑफ एक्स इज दिस, देन फाइंड आउट एफ ऑफ माइनस एक्स। एफ ऑफ माइनस एक्स बच्चों कितना हो जाएगा, माइनस एक्स का क्यूब साइन की पावर 4 माइनस एक्स। साइन ऑफ माइनस एक्स होता है बच्चों माइनस साइन एक्स, बट क्योंकि पावर 4 है so it becomes sine की power 4x minus x cube will become minus of x cube, net minus sign outside, this entire thing is f of x, so f of minus x बच्चों becomes minus of fx, hence this function is odd. This is another way to visualize it, this is another way to find if it is even or odd, but again not devoting time here क्योंकि मैं बहुत डिटेल में आपको ऑलरेडी करा चुका हूं, ठीक है, more complicated than these. And since it is odd, so integration is 0. चलो, anyways, now let's do this बच्चों। ये बताओ, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 cos क्यूब x, ये क्या है? Is it 0 or is it something else? माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 cos of क्यूब x, cos क्यूब x। देखो देखो, हाँ तो कुछ लोग 0 बोल रहे हैं, नहीं 0 नहीं है रे, 0 नहीं है। क्यों? क्योंकि cos खुद क्या था बच्चों, खुद cos itself is even, right? इवन की कोई भी पावर लोगे तो इवन ही रहेगा। सिंपल देखो, f of x है आपका cos क्यूब x। हाउ डू यू फाइंड आउट इफ इट इज इवन और ऑड? यू स्टार्ट बाय राइटिंग f of माइनस एक्स। क्या करता है f of माइनस एक्स बच्चों, जहां जहां दिख रहा है x उसको रिप्लेस कर दो किससे, माइनस एक्स से। सो cos क्यूब माइनस एक्स विच इज एज गुड एज राइटिंग, अगर आप कंफ्यूज्ड हो, cos ऑफ माइनस एक्स का होल क्यूब। बट मुझे पता है cos ऑफ माइनस एक्स कितना होता है बच्चों, क्योंकि cos तो इवन है ना, याद रखना। cos ऑफ माइनस एक्स इज cos एक्स, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एंड साइन ऑफ माइनस एक्स बच्चों कितना होता है, माइनस साइन एक्स। और इसीलिए तो एफ ऑफ एक्स, इसीलिए तो cos एक्स क्या था आपका, और इसीलिए तो साइन क्या था आपका। याद, ये तो सिंपल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, राइट। cos ऑफ माइनस एक्स इज cos एक्स एंड साइन ऑफ माइनस एक्स इज माइनस साइन एक्स। एफ ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स इवन, एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस ऑफ एफ एक्स ऑड, राइट। तो cos ऑफ माइनस एक्स बच्चों कितना हो जाएगा, cos एक्स। तो बच्चों क्या आ रहा है, एफ ऑफ माइनस एक्स कितना आ रहा है बच्चों, f of minus x is fx. it implies function क्या है, it implies function क्या है बच्चों, even. so ये function क्या है, this function is even. याद रखना cos even है, cos की कोई भी पावर even हो जाएगी, right? now once this is there, तो अब क्या करेंगे हम, what will we do? अब क्या करेंगे बच्चों, क्या हो गया ये, 2 टाइम्स 0 से पाई बाई 2 माइनस ए टू ए, इवन फंक्शन इज 2 टाइम्स 0 to a cos क्यूब एक्स। आगे क्या करोगे, यस, एज मेनी ऑफ यू आर सेइंग यू विल अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ cos क्यूब। क्या होता है cos क्यूब का फॉर्मूला, cos 3 थीटा। याद करो, cos 3 थीटा इज, यस, वहां से निकाल लो cos क्यूब, है ना।
हमेशा पावर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इन इंटीग्रेशन यू वांट टू कन्वर्ट इट इनटू द ट्रिग्नोमेट्री ऑफ हायर एंगल्स. कॉस की पावर या साइन की पावर जब भी आती है, जैसे भी पिछले क्वेश्चन में क्या आया था बच्चों, कॉस स्क्वायर एक्स, हमने कॉस स्क्वायर एक्स को किस में कन्वर्ट किया था, कॉस 2x में. ये क्या रहा है, कॉस क्यूब एक्स, इसको किस में कन्वर्ट करोगे, कॉस 3x में, यूजिंग द फॉर्मूला. क्या था फॉर्मूला, अभी देख लेते हैं. सो नाउ लेट्स डू इट. सिंस इट इज इवन, so cos cube x is even as we just saw, right? So this becomes, integration becomes 2 times 0 से pi by 2 cos cube x using the formula बच्चों. This is the formula. ठीक है, I hope all of you remember this formula. This is the formula, right? cos cube x का. now इसको solve कर लो. 0 से pi by 2. हाँ, अब बच्चों देखो एक चीज बताता हूं मैं, ध्यान से देखना इस चीज को. ये cos x का इंटीग्रेशन है ना, उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है. रिमेंबर इट. कैसे, देखना, सुनना ध्यान से जो मैं बोल रहा हूं. फोकस ऑन व्हाट आई एम सेइंग हियर. ऑलवेज रिमेंबर बच्चों, ऑलवेज रिमेंबर, एंड दिस विल बी यूज्ड एज अ शॉर्टकट. जो भी आपका ये साइन और कॉस के ग्राफ में ये जो पोर्शन होता है ना, ये पोर्शन, जैसे ये साइन का ग्राफ है, राइट, जैसे ये कॉस का ग्राफ है, ये जो पोर्शन है ना आपका, जो रिपीट होता जाएगा आगे, साइन में कैसे जाएगा, ऐसे ऐसे ऐसे, कॉस में कैसे जाएगा, लाइक दिस, राइट. बट ये जो पोर्शन है ना बच्चों, इसका एरिया होता है 1 यूनिट. दिस इज 1 यूनिट. इसको याद रख लो. इन सिंपल वर्ड्स, इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 cos x which is same as 0 से pi by 2 sin x. ठीक है, एंड दिस इज एक्चुअली इक्वल टू 1. आप सॉल्व करके देख सकते हो. cos का इंटीग्रेशन आएगा sin pi by 2 बच्चों कितना हो जाएगा, 1 माइनस साइन 0, आंसर इज 1. सो ये याद ही रख लो. सो बेसिकली जैसे क्वेश्चन के अंदर ये आ गया, राइट, इसको तो सॉल्व ही नहीं करना, क्योंकि बच्चों ये तो कितना हो जाएगा, दिस इज 1, दिस इज डायरेक्टली 1. तो ये पोर्शन तो बच्चों कितना हो जाएगा, 3/2. उसको सॉल्व कर लेना. cos का इंटीग्रेशन होता है sin 3x. बिकॉज ऑफ दिस 3 इट विल बी डिवाइडेड बाई 3 एज वेल. सो दिस विल बी हाफ इंटू 1/3 इंटू sin 3x अंडर द लिमिट 0 से pi by 2. पुट द वैल्यूज एंड गेट द आंसर. बट बच्चों ये याद रखना, रिमेंबर इट, व्हेन आई विल टॉक अबाउट पीरियोडिक फंक्शंस आई विल यूज दिस एग्जॉस्टिवली. रट लो, साइन और cos का ये जो 1/4 ऑफ अ पोर्शन होता है, ठीक है, उसका इंटीग्रेशन होता है 1. आई विल यूज इट एज आई गो हेड अ लॉट. क्लियर. तो इसका आंसर बच्चों कितना आ गया, ये तो मैंने आपको बताया, 1 हो जाएगा. सो 3/2 और वो हो जाएगा -1/6. आंसर आ जाएगा आपका 8/6. बट ये कितना था, हाँ सॉरी 4/3 आ गया आंसर. क्लियर, आगे बढ़ जाए. नाउ लेट्स डू दिस वन बच्चों. ये करो, कंप्यूट द इंटीग्रल -√2 से √2 2x की पावर 7 3x की पावर 6 -10x की पावर 5 -7x क्यूब -12x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 2. बट जैसे ही क्वेश्चन में आया -a to a -√2 से √2, तो पक्के से बच्चों क्या सोचना है, इवन एंड ऑड. क्या सोचोगे, इवन एंड ऑड. सोचो. जो पोर्शन ऑड है वो तो उड़ जाएगा, क्योंकि उसका इंटीग्रेशन -a to a बच्चों कितना हो जाएगा, 0. डिनोमिनेटर तो इवन है, डिनोमिनेटर इज इवन. सो इसको देखो ध्यान से. डू यू रियलाइज दैट 2x की पावर 7 -10x की पावर 5 -7x क्यूब प्लस x, अगर इस पोर्शन को मैं अलग हटा दूं तो वो पूरा ऑड है. अप्रिशिएट कर पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं -√2 से √2, इसको हटाओ, ये तो फालतू है. 2x की पावर 7 -10x की पावर 5, ठीक है, -7x क्यूब प्लस x अपॉन x स्क्वायर प्लस 2. दिस इज वन इंटीग्रल.
and the other integral is minus root 2 से root 2. जो बच गया, the left one is, the left thing is 3x6 minus 12x square do you realize that this entire thing बच्चों is what? This entire thing is odd. This entire thing is odd. तो ये तो गया ये पूरा का पूरा बच्चों क्या है? Odd है, because numerator is odd, denominator is even, net it is odd. Yes की no? Right? So ये तो पूरा का पूरा बच्चों गया जीरो. ये भाई तो गया, ये तो गया. This entire thing बच्चों is even. This entire thing is even, क्योंकि सारी की सारी पावर्स क्या है? इवन पावर 1 अपॉन इवन, एंटायर थिंग इज इवन. तो ये पूरा इंटीग्रल बच्चों किस में कन्वर्ट हो जाएगा? दिस एंटायर इंटीग्रल कन्वर्ट्स इनटू 0 से लेके रूट 2, 0 से लेके रूट 2, ये वाली चीज 3x6 माइनस 12x स्क्वायर. अब यहां से सॉल्व कर लो. Can you do it beyond this? So this is your question. Your question is not this. Your question is actually this. And your coming from here to here should not take more than 5-10 seconds. Obvious होना चाहिए आपके लिए. ये सब लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए आपको. इस क्वेश्चन को देखा, सीधे ये लिखा and start solving it. So when you start solving it बच्चों क्या हो जाएगा? है ना? So same thing. तो ये तो गया 0, बच गया क्वेश्चन that one. इतने स्टेप्स करने की जरूरत नहीं है. यू डोंट हैव टू डू ऑल दीज स्टेप्स. ठीक है, ऑल यू नीड टू स्टार्ट प्रॉब्लम फ्रॉम हियर. हाँ, सो दिस इज फ्रॉम वेयर यू स्टार्ट द प्रॉब्लम टू सॉल्व, राइट. तो यहां से आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू करना है. प्रीटी सिंपल. क्या करोगे बच्चों इसके अंदर? इसमें से क्या करो, x की पावर 2 कॉमन ले लो. 3x स्क्वायर कॉमन लोगे तो बचेगा x की पावर 4 माइनस 4, which further can get factorized x square plus 2x square minus 2, right? So what will happen? So this thing will happen 3x square, x square minus 2, x square plus 2 plus 1 upon this. दो पार्ट्स में ब्रेक कर लो, break it into two parts. ठीक है, the first part will give you 3x square, ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 3x square into x square minus 2, algebraic term directly integrate. और दूसरे में बचेगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 विच इज tan इनवर्स वाला इंटीग्रेशन. हेंस योर आंसर. सो आपका आंसर बच्चों कितना हो जाएगा? सो उससे क्या आ जाएगा? फ्रॉम हियर यू विल रीच हियर, ब्रेक इनटू टू पार्ट्स. फर्स्ट वाला विल बी दिस, डिनोमिनेटर गेट्स कैंसल्ड आउट. सेकंड वाले में आ जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2. दिस इज डायरेक्ट इंटीग्रेशन, एल्जेब्रिक टर्म. दिस इज tan इनवर्स. सो हेंस योर आंसर. सो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? इसका इंटीग्रेशन 6x की पावर 5 बाई 5 माइनस 4x क्यूब, और दूसरे वाले का आ जाएगा 2 tan इनवर्स 2 बाई रूट 2 tan इनवर्स x बाई रूट 2 अंडर द लिमिट्स, पुट द वैल्यूज. ठीक है, आई एम नॉट गोइंग इनटू द डीपर कैलकुलेशंस, प्रीटी सिंपल. तो आपका आंसर बच्चों कितना आ जाएगा? योर आंसर, इफ समबडी हैज कैलकुलेटेड, पाई अपॉन 2 रूट 2 माइनस 16 अपॉन 5 इंटू रूट 2, राइट. सो प्रॉब्लम की स्टार्टिंग में द कंसेप्ट ऑफ इवन एंड ऑड वाज वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं तो आप लॉस्ट हो जाते, पता नहीं कुछ कुछ तो भी रैंडम करते जाते. सो प्रॉब्लम विच लुक्ड सो ह्यूज वाज एक्चुअली दिस मच, बिकॉज द ऑड टर्म्स बिटवीन माइनस a टू a का इंटीग्रेशन becomes 0 was the concept in this problem. Cool. So why am I giving so many problems of these types? Because it's a very 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 commonly asked concept in definite integration at JEE level. Okay, so this should be pretty clear in your mind. I hope you are getting all this right. चलो एक last property करते हैं for the day. Pretty interesting property and lot of students get confused with this. ये property बोलती है अगर मैं इंटीग्रेट करता हूं 0 to a. अच्छा बाय द वे एक सेकंड बिफोर आई स्टार्ट, इवन ऑड तक समझ में आया बच्चों? अभी तक हमने दो बड़ी प्रॉपर्टीज की और एक्चुअली यही प्रॉपर्टीज काम आती हैं, बाकी और कुछ काम आएगा ही नहीं. ओनली दीज टू प्रॉपर्टीज विच वी हैव डन टिल नाउ will help you solve almost all the problems at JEE advanced level. The properties were the King's property, f of x का integral 0 to a to b is integral f of a plus b minus x a to b. Super important.
The second was even in odd functions, how do integral behaves between minus a to a. Odd है तो 0, even है तो 2 times 0 to a. बस ये दो से सब काम हो जाएगा. बट लेट अस लर्न सम सिंपल छोटी छोटी प्रॉपर्टीज मोर. ठीक है, बट ठीक है, आना चाहिए. जेई में प्रॉब्लम ये नहीं भी आएगी तो भी सॉल्व कर लोगे, बट स्टिल दिस प्रॉपर्टी इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा, इससे करोगे इट विल बिकम वेरी सिंपल. द प्रॉपर्टी सेज इंटीग्रल 0 to a fx dx एक्चुअली कैन बी ब्रोकन डाउन. अगर 0 to a का इंटीग्रल है ना, आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो. यू कैन कन्वर्ट दैट इन द इंटीग्रल ऑफ 0 से a/2. मान लो 0 से पाई है, यू कैन एक्चुअली कन्वर्ट इनटू 0 से π/2. यू कैन, राइट. अंदर आ जाएगा f of x प्लस f of a minus x. अब ये इसको अपन अभी प्रूव करेंगे फटाफट एंड देन विल सी इट्स एप्लीकेशन. बट इंटरेस्टिंग ये है, अरे भैया अगर इन दोनों का सम 0 हो गया ना तो इंटीग्रल 0 हो जाता है. तो इंटीग्रल बिकम्स 0. ऑब्वियसली इफ f of x इन दिस क्वेश्चन, इफ f of x और f of a minus x एक दूसरे के नेगेटिव है, राइट, देन द इंटीग्रल बिकम्स 0. ऑब्वियसली बिकॉज ये समेशन कितना हो जाएगा 0. और नहीं तो बच्चों क्या हो जाएगा 2 times 0 से a/2 fx dx. अगर ये दोनों बराबर है, इफ बोथ ऑफ दीज आर इक्वल, राइट. ठीक है, तो क्या करें इसको, तो इसको समझते हैं एक बार. क्या क्या देखो, फिर से ध्यान से देखना. इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर बच्चों हियर इज दैट इंटीग्रल, इसको लिख लो कॉपी में, इंटीग्रल 0 to a fx dx. इंटीग्रल कर रहा था मैं 0 से a तक fx dx. कुछ तो मेरे दिमाग में आया, मैंने उसको ब्रेक कर दिया, मैंने उसको केवल किया कहां तक 0 से a/2 तक. सो आई कैन कन्वर्ट एनी इंटीग्रल बिटवीन 0 to a into an integral between 0 से a/2. But while doing that, your fx gets broken into 2 parts. एक हो जाता है f of x, एक हो जाता है f of a minus x. Summation of both. If the summation of both is 0, actually answer is 0, and that is where this format is important in objective problems, right? And otherwise, अगर दोनों बराबर हैं f of x और f of a minus x, then this integral converts into 2 times 0 से a/2 f of x dx. प्रूव करते हैं इसको, बहुत सिंपल है. क्या किया अपन ने, सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं 0 से a f x dx. Let me break into 2 parts. While going from 0 to a, let me stop at a midway, that is a/2. So let me break into 2 parts. मैं जाता हूं 0 से a/2 और फिर जाता हूं a/2 से a. I can do that. All of you know this going from a to b, I can actually break it at some point c in between, right? So while going from 0 to a, let me break it at a/2. So 0 से a/2 जाऊंगा. First I'll go from 0 से a/2, then a/2 से a, right? Now leave one of this as it is. Let's attack the other one. मैं क्या करता हूं, मैं a/2 से a वाला जो है ना, the second integral 0 से a/2, keep it as it is. I am focusing only on this. मैं इसके ऊपर फोकस कर रहा हूं अभी, a/2 से a के ऊपर. मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूं in an integral between 0 से a/2 अगेन. कैसे? By using a substitution. मैं क्या करता हूं, a/2 से a में मैं x को पुट कर देता हूं a minus t. Let me put x is equal to a minus t. तो देखना बच्चों क्या होगा, dx हो जाएगा minus dt, dx will be minus dt, right? f of x हो जाएगा बच्चों क्या, x की जगह आ जाएगा f of a minus t, है ना, a minus t. And now let's see how the limits will change. When x is a/2, what is t? When x is a/2, बच्चों t हो जाएगा a/2. Put x की जगह a/2. See what is the value of t coming out. You will see t की value is coming out to be a/2. When x is a, t बच्चों कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा. f of a minus t और dx की जगह बच्चों कितना हो जाएगा, minus of dt. But I will consume the minus sign. Remember last class की पहली प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी in the first page of the properties. I can use the minus sign to interchange the limits. Yes. So I will consume the minus sign and interchange the limit. तो ये हो जाएगा 0 से a/2 f of a minus t. But हमने ये भी पढ़ा था कि t बोलो या x बोलो क्या फर्क पड़ता है, it does not matter. So in the place of t can I again
change the name of the variable because it looks better to write it as x. So this integral, what we have learnt बच्चों, so what you have learnt is कि ये जो integral है ना, this integral can also be written like this, right? Hence the property क्या थी अपनी? Property थी integral 0 to इंटीग्रल 0 to a fx dx, जिसको हमने ब्रेक किया था इंटीग्रल 0 से a/2 fx dx प्लस a/2 से a fx dx, ब्रेकिंग द इंटीग्रल in between at a/2, right? But we then suddenly realized कि अरे भाई ये जो इंटीग्रल है, this integral is same as this integral, right? So my entire integral becomes इंटीग्रल 0 से a/2, तो ये भी 0 से a/2, ये भी 0 से a/2, so I can add the two, it simply becomes f of x plus f of a minus x. समझ में आया? So integral 0 to fx dx can be converted into 0 से a/2 fx plus f of a minus x dx. सबको समझ में आ रहा है क्या? आ रहा है? यस कि नो? ठीक है, एक एप्लीकेशन करेंगे उससे और समझ में आएगा. सेम थिंग अपन ने जो किया अभी है ना. सो इंटीग्रल हो गया 0 से a/2 f of x plus f of a minus x dx. Now look at this problem बच्चों. Let's see how this problem can be solved using this property. 0 से pi, this is actually was a problem of JEE. This was a problem of JEE. It's a sub part of a problem of JEE. ये पूरी की पूरी प्रॉब्लम नहीं थी JEE की. JEE की एक प्रॉब्लम में एक सब पार्ट था ये. इंटीग्रल 0 से पाई, इंटीग्रल क्वेश्चन है इंटीग्रल 0 से पाई साइन 2kx अपॉन साइन x, राइट? इस प्रॉब्लम में दिमाग में ही आया यार एक बार चेक तो करके देखें जरा. यहां पे ये पूरी चीज को मैं क्या बोलता हूं? दिस एंटायर थिंग इज f of x. ठीक है, आई एम डूइंग द इंटीग्रल बिटवीन 0 to a, right? What did we learn? We learned that integral 0 to a fx dx is actually integral 0 से a/2 f of x plus f of a minus x dx. So सबसे पहले मैं जरा f of a minus x देखता हूं क्या है. What is f of a minus x? f of x is this. Let's check what is f of a minus x. चेक जरूर करना एक बार, क्योंकि कई बार जीरो हो जाता है, राइट? सो लेट मी चेक व्हाट इज f of a minus x, राइट? सो यहां से हम क्या करते हैं, इंप्लाइज लेट अस चेक व्हाट इज f of a minus x. f of a minus x बच्चों क्या होगा? जहां यह a कितना है बच्चों? पाई, राइट? चेक व्हाट इज a minus x, मतलब जहां जहां दिख रहा है x, wherever you see x replace that by pi minus x. तो बच्चों कितना हो जाएगा? साइन ऑफ 2k pi minus x अपॉन साइन ऑफ pi minus x. एग्री? क्या किया मैंने? जहां जहां x था उसको रिप्लेस कर दिया किससे? a minus x से. a बच्चों कितना है? पाई. तो ये कितना आ गया? व्हाट इज दिस? साइन 2k पाई, साइन 2k पाई माइनस साइन, सॉरी माइनस साइन कैसा गया? माइनस साइन 2kx अपॉन साइन पाई माइनस थीटा. बच्चों कितना होता है? व्हाट इज साइन पाई माइनस थीटा? साइन पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा. सेकंड क्वाड्रेंट. पाई माइनस एक्स करोगे तो कौन से क्वाड्रेंट में रहोगे? सेकंड क्वाड्रेंट में. सेकंड क्वाड्रेंट इज पॉजिटिव. बट व्हाट इज साइन 2k पाई माइनस थीटा? व्हाट इज साइन 2k पाई माइनस थीटा? याद रखो साइन 2 पाई माइनस थीटा कितना होता है? माइनस साइन थीटा. साइन 2k पाई माइनस थीटा भी कितना होगा? माइनस साइन थीटा. बिकॉज यू आर इन द फोर्थ क्वाड्रेंट. फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन इज नेगेटिव, राइट? 2 पाई माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट, साइन नेगेटिव.
तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी माइनस साइन 2kx अपॉन साइन x, राइट. बट साइन 2kx और साइन x ये कितना है, दिस इज नथिंग बट f ऑफ x, सो दिस इज व्हाट, दिस इज माइनस ऑफ f ऑफ x. अरे वाह, तो हो गया प्रॉब्लम सॉल्व. सो यू रियलाइज दैट f of a minus x, f of a minus x is minus of fx. f of a minus x और f of x अगर एक दूसरे के नेगेटिव है तो this प्लस दिस बच्चों कितना होगा, जीरो. सो दिस थिंग इज व्हाट, जीरो. सो इंटीग्रल इज व्हाट, जीरो. आंसर इज जीरो. प्रॉब्लम सॉल्व्ड. सो इन सच प्रॉब्लम्स this property actually helps a lot. So mostly 99.9% cases when this property is used, you will realize that the answer at times is zero, क्योंकि f of x और f of a minus x एक दूसरे के नेगेटिव हो जाते हैं, और जब भी नेगेटिव हो जाते हैं ना आंसर जीरो हो जाता है. तो याद रखना, in any integral between 0 to a, if f of x and f of a minus x are negative of each other, answer is zero. Cool. सेम चीज है ना, f of x ये था, हमने f of a minus x कैलकुलेट किया, साइन 2k पाई माइनस 2kx अपॉन साइन पाई माइनस x. साइन पाई माइनस x होता है साइन पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा, बट साइन 2 पाई माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा. Net minus sign outside, but that becomes minus of fx. f of a minus x is minus fx, hence integral is zero. Hence integral is zero. Cool. Chalo. All right बच्चों, so I'll stop my class here. Next class will start YWET. So next class what will we do, let me tell you. In the next class I'm going to do integration of periodic functions, then application of Newton-Leibniz. Third one, summation as integration. These are the three things that we are going to do, and these are very important from IIT perspective. These are very, very important from IIT perspective. This is what we are going to do in my next class. And on that note, bachcho, I will close my today's class. And bachcho, you will get the assignment as well on the Telegram group. Okay? So just go to the Telegram group and you will get the assignments and the PDF of the classes here. And the PDF of the classes and the assignments will also be available on the Vedantu app. Okay? तो इन दोनों जगह पे आपको available होगा, तो आप इसको भी डाउनलोड कर लेना. एंड दिस इज एज आई सेड 2 more classes on definite integration. नेक्स्ट क्लास में वी विल कंप्लीट ऑल द प्रॉपर्टीज एंड द कंसेप्ट्स. उसकी नेक्स्ट क्लास में वी विल डू अ फुल रिविजन बाय सॉल्विंग सुपर नाइस IIT level problems of mains and advanced level, right? Chalo. And if you really understood what I did today, then do press on the like button so that I get a feedback. And please do share and subscribe with your friends. And as I always say bachcho, this is your life, y is equal to x square. So आपको बच्चों किसको मैक्सिमम, आपको किसको किसका इंटीग्रेशन करना है, you have to integrate स्माइल्स. ये छोटी 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 स्माइल्स को इंटीग्रेट करते जाओ, आपकी लाइफ हैप्पी रहेगी. ठीक है, दिस इज नथिंग बट एन हैप्पी लाइफ. सो हैप्पी लाइफ is a sum total of, or the summation of little smiles which you get every day by accomplishing your targets, by doing something good with the people around you. So always keep doing good, always keep smiling, because doing good, being a good human being से जो खुशी मिलती है, जो satisfaction मिलता है, वो किसी और चीज़ से नहीं मिलता. और वही तो लाइफ है, बाकी सब तो होता रहेगा. ठीक है, जेई वही तो बहुत छोटी चीज़ है उसके अंदर. JEE is a very small element of your entire life, right? So keep smiling, be happy, keep integrating that. Bye bye. See you in my next class on Monday.
Bye.